Hello, everyone. A very good evening to all of you. A very good evening to Surbhi. She's here. She has generously volunteered her time to speak to us today about a very important subject. See, historiography is something that troubles almost every mind that is encountered with the UPSC history optional, right? कि होता क्या है, कैसे use करना है. So today, Surbhi has decided to share her insights on this subject. Brief introduction of Surbhi. Surbhi was associated with our test series program this year. She secured quite a good score, more than 285 marks she secured, and she's also secured rank 14 in the examination itself. And so with this, without any further delay, hi Surbhi, welcome, and please share your insights regarding historiography. Hello, thank you. Thank you so much, sir, for having me here. Um, Historiography honestly has troubled me a lot, especially during my 2023 attempt. I think I was, because my background is in history, I've done history honors from LSR. And from there, our idea is that any question of history is incomplete without writing historians, without writing their debate, what Satish Chandra is saying, what Shekhar Bandyopadhyay is saying. So there was always this fear and sense of idea that अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है बिना हिस्टोरियन लिखे किसी भी आंसर को एंड आई थिंक दैट थॉट has haunted me, especially in 2023 attempt, because in lot of my notes there was no historians. किसी question में है ही नहीं, मतलब वो debate ही नहीं है. So I used to find out like last minute पे कि चैट जीपीटी भी कर लिया कि किस historian ने क्या बोला है हर question के लिए, हर topic के लिए. Was trying to find out historians, but eventually I realized that for UPSC, it is a very different game. In UPSC, you do not need each and every historian for each and every question, and you do not need debates. That is the first thing that you need to understand. For historiography, two things come into a picture. That is some school of thought. That is the Nationalist School of Thought, Cambridge School of Thought, or which school of thought we are trying to write. Another thing is which historians are belonging to that school of thought and what are the historians saying. First do's of historiography is one, you should be very peculiar, is that you need a lot of historians in some of the questions and some of the debatable kind of questions. For example, we do topics like 18th century debate, or we do Harappan civilization. What were the reasons of rise of Harappan civilization, or what were the reasons of decline of Harappan civilization? In such kind of debates, in such kind of questions, you would definitely need a lot of historians, because ये question ही centered है इस पे डिबेट पे कि कोई कुछ बोल रहा है. देयर इज नो पर्टिकुलर सेटलमेंट ऑन द आइडिया कि क्यों हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई. तो उसमें विल हैव टू गिव मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एंड मल्टीपल हिस्टोरियंस हर टॉपिक में. सो सर्टेनली फॉर दोज काइंड ऑफ टॉपिक यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ हिस्टोरियंस. उधर पे हिस्टोरियोग्राफी बिकम्स इम्पोर्टेंट. बट फॉर अदर क्वेश्चंस, जैसे कि in general हम कुछ पढ़ रहे हैं subsistence pattern in Harappan civilization, there you need not find out कि कौन historian क्या बोल रहा है कि क्या subsistence pattern था. उसमें you just need arguments, you just need कि ये है और ये evidences मिले, based on these evidences we can say कि these were the subsistence pattern. Or there is Indo-Roman debate. तो Indo-Roman trade का अगर कुछ क्वेश्चन आता है, तो इंडो रोमन ट्रेड में यू डू नॉट नीड 500 काइंड ऑफ हिस्टोरियन सेइंग दिस एंड दैट. देयर आर लॉट ऑफ हिस्टोरियंस हैव रिटन अबाउट इंडो रोमन ट्रेड. बट इफ यू सी PYQs, you'll realize कि वो डायरेक्टली कोई डिबेट नहीं पूछ रहा है कि कहाँ से क्या है. देयर माइट बी जस्ट वन कि शिरीन रत्नागर को कोट कर दिया बिकॉज शी इज वेरी पॉपुलर फॉर इंडो रोमन ट्रेड. उसके अलावा यू डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ हिस्टोरियंस, यू नीड टू बी वेरी कॉशियस. ऐसे ओवरडू नहीं करनी है हिस्टोरियोग्राफी. उसके अलावा थर्ड थिंग दैट यू नीड टू बी वेरी कॉशियस इज कि हिस्टोरियंस के स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है. यू नीड नॉट लर्न व्हाट अ हिस्टोरियन सेइंग फ्रॉम बाय हार्ट कि उसको कोट करके कर ही दिए हैं, बिकॉज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. हर टॉपिक में हिस्टोरियंस है, हर टॉपिक में I'll tell about resources later. I think first we can cover up the historiography part only. Right. So before I was going to ask कि exactly when we say historiography, so what do we mean by that for the from the perspective of the civil services examination?
हिस्टोरियोग्राफी, इज इट सिंपली नेम ड्रॉपिंग हिस्टोरियंस? क्या उस पर फोकस होना चाहिए हमारा, या फिर आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए? तो दैट आई थिंक इज अ थिंग दैट ट्रबल्स मेनी पीपल, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स तो एक बार समझ में आ जाते हैं, लोगों को याद भी हो जाते हैं, सारे डायमेंशंस भी क्लियर हो जाते हैं. इट इज द ऑफ द हिस्टोरियंस दैट पीपल यूजुअली हैव द मोस्ट ट्रबल विद. तो हाउ इंपॉर्टेंट आर दोज नेम्स? क्या केवल नाम से नाम याद करने से ही काम होगा, या फिर स्कूल ऑफ हिस्टोरियन से काम हो सकता है? क्योंकि इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि सारे हिस्टोरियंस का नाम हर टॉपिक के लिए याद रहे, एग्जैक्टली उनके आर्ग्यूमेंट्स याद रहे. तो व्हाट एग्जैक्टली इज द करेक्ट पर्सपेक्टिव टू हैव ओवर हियर, एंड व्हाट वाज द सॉल्यूशन यू फाउंड टू दिस प्रॉब्लम? बिकॉज आई एम श्योर यू मस्ट हैव आल्सो grappled with this problem. Yes, sir. True, true. I was referring to that only. So historiography में I was referring कि कुछ questions हैं जिसमें तुम्हें बहुत historians याद करने की जरूरत है, like the questions on जिस जो debatable questions ही हैं, like decline of Harappan civilization, coming of Harappan civilization, या 18th century debate, या decline of the Mughals, उसमें you need to have certain idea कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट क्या बोल रहा है और कौन सा हिस्टोरियंस क्या बोल रहा है. उसमें यू नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर पर्टिकुलर. But for other questions, you need to have a major idea on the arguments. You will get your marks on the basis of arguments only. This I've realized. Because अगर आप हिस्टोरियंस फर्स्ट याद नहीं रहेंगे इतने सारे हर टॉपिक के लिए, आप फिर वो मिक्स एंड मैच अप करोगे, फिर आप मतलब यू आर गोइंग टू स्ट्रेस अप अबाउट द हिस्टोरियंस ओनली अ लॉट, एंड देन फिर वो आर्ग्यूमेंट्स गड़बड़ होंगे. एंड ऑल्सो अगर आर्ग्यूमेंट्स आपके गड़बड़ होते हैं तो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि फर्स्ट आइडिया इज टू गिव द आर्ग्यूमेंट, सब्सटैंशिएट द क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन को एड्रेस करना है, हिस्टोरियंस ने क्या बोला है, कौन एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिबेट. दैट इज नॉट द मेन आइडिया. फर्स्ट आइडिया इज टू गिव द आर्ग्यूमेंट्स की उसको सब्सटैंशिएट करना है. फिर इफ यू रिमेंबर, फॉर एग्जाम्पल अगर यू रिमेंबर कि हरबंस मुखिया किस स्कूल ऑफ थॉट के हैं और किस साइड वो अलाइन करेंगे, देन यू कैन जस्ट गिव योर आर्ग्यूमेंट एंड एट द एंड इन द ब्रैकेट जस्ट राइट एज हरबन मुखिया is also supported. You need not point out the exact statement that Harbans Mukhya in this book has referred this thing, and these are the major arguments, because any historians they have written a lot, and अगर उनका एक भी argument डालोगे तो you'll have to write at least 2-3 points. उनका फिर if you write a historian you'll have to write the counter argument as well, उसी historian का counter करते हुए. So it will become like a college kind of an answer, and it will not become a UPSC kind of an answer. Academic exercise हो जाएगा वो. तो वो I उसको think बस this is very ब्रैकेट में आई important. थिंक यू कैन राइट. Yeah, I think this is a very important point कि arguments are more important than the names of the historians always. तो first requirement अच्छे आंसर के लिए कि डिमांड को फुलफिल करना है, उसको हर एंगल से आपको डाइसेक्ट करके प्रेजेंट करना होगा. देन उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए इफ पॉसिबल, इफ यू रिमेंबर, तो हिस्टोरियंस के नाम सप्लाई करो. हिस्टोरियन का नाम लिख दो, या फिर स्कूल ऑफ थॉट आल्सो यू कैन मेंशन कि दिस स्कूल ऑफ थॉट सपोर्ट्स दिस आर्गुमेंट. So that will add as a value addition to your argument. So first it is addressing the question, then doing the value addition, not value addition and not addressing the question. That will backfire you. Right, right. अच्छा, suppose in the heat of the examination, आपने जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको याद है, लेकिन इन द हीट ऑफ एग्जामिनेशन मान लीजिए कि हिस्टोरियोग्राफी, मतलब नेम्स ऑफ द हिस्टोरियंस दिमाग से निकल गए, तो व्हाट टू डू देन? यू आर मिडवे इन राइटिंग द आंसर. फिर तब क्या करना है? आई थिंक अगर नहीं याद आ रही तो डोंट राइट इट, डोंट राइट रॉन्ग. क्योंकि अगर आप गलत लिख देते हो और मान लो आपने 4 जगह ठीक लिखा है, एक गलत लिखा है, तो आई फील कि अगर एग्जामिनर ने सिर्फ वो एक गलत देख लिया तो दे माइट हैव दिस परसेप्शन कि शायद ये गलत लिखा है, आगे कहीं है, फैक्चुअल एरर कर सकता है ये बच्चा. तो दैट माइट क्रिएट अ रॉन्ग परसेप्शन. इट्स बेटर दैट यू डोंट राइट इट. अगर आपको नहीं याद आ रहा है इट्स ओके. आर्ग्यूमेंट्स प्राइमरी है. To be very honest, this time also I have not written a lot of historians. I have written maximum 1 or 2 historians in each question. जिसमें need है, जिसमें है arguments, वो ठीक है. But ऐसा भी एक दो question ऐसा है जिसमें एक भी historian नहीं लिखा है, और ऐसे भी question है जिसमें 1 या 2 maximum historians लिखे हैं. So it's fine अगर याद नहीं आ रहा है, but गलत नहीं लिखना है. अगर तुमको school of thought याद आ जाता है तो school of thought mention कर दो. मतलब वो ब्रॉडर आइडिया हमें हमेशा रहता है. अगर आपने हिस्टोरियोग्राफी बेसिक पढ़ी हो, MHI 3 अगर नहीं भी पढ़ा है तो MHI 3 इग्नू का एक सब्जेक्ट है. यू कैन ग्लैंस थ्रू दैट, स्पेशली इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के बारे में. तो यूल हैव अ ब्रॉडर आइडिया अबाउट इट कि कौन सा आर्ग्यूमेंट कौन से स्कूल ऑफ थॉट में जा सकता है. तो अगर हिस्टोरियन याद नहीं है तो यू कैन गो फॉर स्कूल ऑफ थॉट. अच्छा,
अच्छा, तो आई वुड लाइक टू फर्दर पुल दिस थ्रेड कि if you have identified the relevant positions of the different schools of history regarding any subject, will you be able to anticipate कि यार ये स्कूल है वो इस पर्सपेक्टिव से मैटर्स को देखता है, तो उसका आर्गुमेंट पॉसिबली ये होगा. Is that doable, first of all, and secondly, is that advisable? It is doable, but don't overdo it. Just do it for एक जगह या दो जगह मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में. इट इज मतलब डोंट ओवरडू इट सिर्फ उसको दिखाने के लिए कि अरे ये भी नेशनल हिस्टोरियन ने लिखा है, ये भी नेशनलिस्ट, ये भी नेशनलिस्ट. बिकॉज एट टाइम यू माइट बी रॉन्ग. मतलब यू कैन नॉट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर एवरीथिंग, क्योंकि मतलब बहुत सारे वेरिएशन है. वी ऑल्सो रीड कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस में भी बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जिनका आर्ग्यूमेंट अलग अलग हो सकता है. तो यू कैन हैव सर्टेन आइडिया और वो तुम एक दो जगह डाल सकते हो, बस जस्ट डोंट ओवरडू इट कि एग्जामिनर को वो हो जाए. ठीक है. अच्छा, वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क, रिलेटेड ही है कि जब हम टॉपिक्स को कवर करते हैं तो हिस्टोरियोग्राफी उसके साथ किस तरह से कवर करनी चाहिए. शुड वी टेक द एंगल कि पहले थीम पढ़ लीजिए या फिर डिबेट पढ़ लीजिए, उसके बाद उससे रिलेवेंट हिस्टोरियंस के आर्गुमेंट्स उसमें ऐड करे जाएं, या फिर एक ही थीम को बार बार अलग स्कूल ऑफ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए. आई थिंक सेकेंड थिंग विल बिकम वेरी बल्की. एक ही उसको अलग अलग से पढ़ते रहेंगे तो आई थिंक एक एक टॉपिक है उसका पढ़ लिया, जनरल आर्ग्यूमेंट्स पढ़ लिए कि जनरल आइडिया क्या है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या है, फॉर क्या है, वो क्या है. उसके बाद उसी में साथ में पढ़ लिया कि विच हिस्टोरियंस आर फॉर, विच हिस्टोरियंस आर अगेंस्ट. अगेंस्ट में है तो अगर एक दो हिस्टोरियन है उनका आर्ग्यूमेंट देख लिया कि उन व्हाट बेसिस दे आर सेइंग इट इज, मतलब अगेंस्ट है अगर तो वो. और अगर जो फॉर में है कोई हिस्टोरियन तो वो देख लिया कि वो क्या चीज में है. और जस्ट डोंट ओवरडू इट. मतलब वही है, एक टॉपिक में मैक्सिमम आप तीन अपने नोट्स बनाने के टाइम पे मैक्सिमम 3 या 4 देख लो, इंक्लूडिंग फॉर एंड अगेंस्ट. और वो एग्जाम में आते आते 2 ही याद रहते हैं फिर. तो राइट राइट. दैट इज द केस. अच्छा, रिलेटेड टू दिस, क्योंकि यहाँ पे देर इज सम डिग्री ऑफ मेमोराइजेशन विच विल बी रिक्वायर्ड, स्पेशली इफ डिजायर टू रिमेम्बर द नेम्स ऑफ द एग्जैक्ट हिस्टोरियंस एक्सेट्रा. तो क्या आपने प्रिपरेशन करते समय हर थीम के बाद या हर डिबेट के बाद कोई ऐसा समरी बनाया हिस्टोरियोग्राफी का कि दीज आर द मेन आर्गुमेंट्स, ये पोजीशन इन वाले हिस्टोरियंस ने ली हुई है? मैंने स्पेसिफिकली हिस्टोरियोग्राफी की समरी नहीं बनाई. माय होल आइडिया वाज टू हैव दैट इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ अ लर्निंग. तो जैसे कोई भी टॉपिक है उसके मैंने मतलब उस टॉपिक की ही समरी बनाई, उसी में लिख लिया ये वाला हिस्टोरियन, दीस टू हिस्टोरियंस विल कम हैंडी इन दिस टॉपिक, ऐसे मतलब नॉट सेपरेट हिस्टोरियोग्राफी समरी. मतलब यू हैव स्टडीड हिस्ट्री एज अ डायलेक्टिकल सब्जेक्ट कि एक बंदा ये बोल रहा है, उसका दूसरा बंदा ये बोल रहा है, फिर वो बंदा ये काउंटर दे रहा है, फिर तीसरा बंदा आ रहा है वो ये बोल रहा है. दैट इज अ वेरी ऑर्गेनिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स. मतलब लास्ट टाइम आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट 2023 में आई ट्राइड दिस कि हिस्टोरियोग्राफी कहीं अलग से लाके हिस्टोरियोग्राफी के नोट्स कर लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो आप हिस्टोरियोग्राफी अलग याद कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स अलग याद कर रहे हो, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट वो एग्जाम प्रेशर में कि आप इंटीग्रेट कर पाओगे उसको. तो इट्स बेटर कि जब आप नोट्स पढ़ रहे हो या जो भी पढ़ रहे हो उसी टाइम पे यू डू इट साइमल्टेनियसली उस टॉपिक में, उसके साथ ही उसको पढ़ लो. मतलब आर्ग्यूमेंट्स के साथ ही उस हिस्टोरियन का अगर नाम कुछ याद है, उस हिस्टोरियन को अगर आपको लगता है कि इंट्रो में यूज कर सकते हैं या कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो स्टडी दैट इन अ वेरी इंटीग्रेटेड मैनर. अगर अलग अलग पढ़ोगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट दैट ड्यूरिंग योर आंसर राइटिंग. वो लास्ट में नहीं हो पाता, फिर वो अलग रखा रह जाता है. राइट राइट. अच्छा, एक बात मैं और जानना चाह रहा था आपसे, दैट व्हेन यू आर making the transition from factual sort of history to more interpretive sort of history, तो वहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी को कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब हम मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं और फॉर एग्जाम्पल मुगल आर्किटेक्चर देख रहे हैं हम, राइट? तो एक तो होता है कि आप उसके जितने भी कॉस्मेटिक फीचर्स हैं वो देख लीजिए कि कौन सा फीचर किस दौर में इंट्रोड्यूस हुआ है वो देख लीजिए. दूसरा होता है उसके पीछे इंटरप्रिटेशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन यूपीएससी पीवाईक्यू में है that the Mughals built like titans but embellished like jewelers, right? तो यहाँ पे students find it very difficult कि एक तो
यहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी इंट्रोड्यूस कैसे करे जाए, एंड सेकेंडली कि उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, मतलब हाउ टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। तो इज देयर एनी एडवाइस फॉर देम ओवर हियर? टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, अगर जैसे कुछ पीवाईक्यूज किए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया है, तो ये अलग अलग फॉर्म में काफी बार आता है क्वेश्चन। मतलब आर्किटेक्चर में इन जनरल भी इस स्टेटमेंट को ऐसा होता है, बहुत सारे पीवाईक्यू के जो स्टेटमेंट है वही यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। अगर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहा है तो थोड़ा तो पीवाईक्यू करेंगे, देन उसके बाद विल स्टार्ट राइटिंग इन द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन। इसमें फैक्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे लेटर ऑन स्टेज में। आई थिंक पहले हम इसको इंटरप्रिटेशन बेस पे जाएंगे कि पहले तो स्टेटमेंट को इंटरप्रेट किया कि द whatever the statement is, अगर पीवाईक्यू में आया तो वी नो कि किसने कहा है, ये भी कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हो तो एक एज मिल जाएगी कि दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय दिस पर्सन एंड ये है। फिर उनकी जो स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन है दैट विल कम फर्स्ट बिफोर राइटिंग दी फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड ये चीज सब्सटैंशिएट करके। इनिशियली ही हिस्टोरियोग्राफी में मेरा जो राइटिंग स्टाइल आई थिंक सब लोगों का डिफर करता है, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट माइन इज टू फर्स्ट एड्रेस द स्टेटमेंट, फिर उसमें इंटरप्रिटेशन, फिर उसमें अगर कोई हिस्टोरियन की वो है, एंड देन सब्सटैंशिएटिंग इट विद द फैक्ट्स जो हम मतलब जो बेसिक फैक्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं वो उससे सब्सटैंशिएट करेंगे, वो पॉइंटर्स में लिखेंगे। एंड जो इंटरप्रिटेशन है दैट कैन गो इन अ लिटिल बिट ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेट आल्सो। अच्छा अच्छा, वन मोर क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है विच यू आर फीलिंग एंशियस अबाउट, देयर इज समथिंग विच यू आर फीलिंग एंशियस अबाउट, उसके पास ना आपके पास अच्छा रिसोर्स है और हिस्टोरियोग्राफी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हैव यू यूज्ड एनी एआई टूल फॉर दैट? एंड अगर किया है अपनी हिस्टोरियोग्राफी को एक्सपैंड करने के लिए या फिर और रिफाइन करने के लिए, तो किस तरह से आपने किया है वो? मतलब हैव यू फेड इट द रेलेवेंट सोर्स मटेरियल या फिर उससे केवल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है? आई थिंक आई हैव यूज्ड चैट जीपीटी थोड़ा सा हिस्टोरियोग्राफी पूछने के लिए, बट अगेन उसको थोड़ा सा तुमको गूगल सर्च करके भी वेरीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज चैट जीपीटी कभी कभी सेम ही टाइप के आर्ग्यूमेंट सबके उसमें भर देता है। मतलब चैट जीपीटी इज रिलायबल जस्ट टू हैव द नेम ऑफ द हिस्टोरियंस, एंड देन उनके क्या आर्ग्यूमेंट किस डायरेक्शन में जाएंगे उसके लिए यू हैव टू गो अ लिटिल बिट इन डेप्थ, बिकॉज समटाइम्स चैट जीपीटी कैन बी अनरिलायबल। तो उसको 100% कॉपी नहीं करना, बट यू कैन यूज इट टू हैव द नेम ऑफ द हिस्टोरियंस हु हैव रिटन ऑन दिस। कि मतलब यू कैन सर्च कि जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है तो वी वांट सम हिस्टोरियोग्राफी ऑन दैट, तो जस्ट यू विल राइट हिस्टोरियोग्राफी विद द बुक दे हैव रिटन, आस्क चैट जीपीटी स्पेसिफिकली कि ये बुक लिखी है उसने, देन यू कैन हैव लाइक वो टैली कर सकते हो कि हाँ ये सच में लिखा है इस बारे में, एंड देन वी कैन इन्फर, और फिर एक दो गूगल सर्च कर लिया तो फिर उस बेसिस पे यू कैन डू इट। मतलब 3-4 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन करना है तभी एआई की। हाँ हाँ, क्योंकि एआई मतलब आई हैव ट्राइड बहुत सारा, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आई वाज ट्राइंग फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, देन इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि वो तो सब चीज के लिए सेम ही आर्गुमेंट दे रहा है। राइट। चैट जीपीटी हर टॉपिक में हर हिस्टोरियंस का सेम ही आर्गुमेंट दे रहा है, तो आई फेल्ट लाइक कुछ तो फिशी है इसमें, तो इसलिए गूगल सर्च करना जरूरी है। हाँ, थोड़ा हेलुसिनेट करने लगता है एआई हाँ हाँ हाँ। एक पॉइंट पे आकर के। अच्छा, आई वांट टू आल्सो डिस्कस कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए पहले तो यू मस्ट बी पार्शियल टू वन सब्जेक्ट ओवर द अदर। पेपर वन में हो सकता है कि एंशिएंट अच्छा होता है, मिडिवल, सिमिलरली पेपर टू में भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विच पेपर, मतलब विच सब्जेक्ट्स वर यू पार्शियल टू, और किससे थोड़ा एंजाइटी होता था, डर लगता था? आई थिंक मेरे लिए एंशिएंट हिस्ट्री काफी कंफर्टेबल था। मिडिवल में मुझे डर लगता है, स्पेशली क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है मेरे लिए ओके। ऑन अ पर्सनल लेवल। इस बार दो मिडिवल इजी था, एंशिएंट कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था, बट स्टिल आई अटेम्प्टेड एंशिएंट क्योंकि मेरा उसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड था। राइट। वो है। और सेकंड मॉडर्न और वर्ल्ड में मैं 50-50 हूँ, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर कि किस में क्या आएगा। अच्छा, कमिंग टू एंशियंट जो कि स्ट्रॉन्ग सूट है, वहां पे हिस्टोरियोग्राफी हाउ डिड यू वर्क ऑन इट? डिड यू वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम द पीवाईक्यूज, या फिर आपने पहले जो रिसोर्स मटेरियल है उसको बेस बनाया, उसके बाद पीवाईक्यूज पे फोकस किया? पहले मैंने रिसोर्स बेस को मतलब पहले अपने नोट्स बनाए सारे टॉपिक्स के, वही टॉपिक वाइज जितना माइन्यूट से माइन्यूट टॉपिक जिसमें बना सकते हैं। देन आई वेंट ऑन टू डू पीवाईक्यू, एंड पीवाईक्यू से फिर वो वाले क्वेश्चंस किए जिनका मेरे पास नोट्स नहीं।
तो अच्छा। there are a lot of PYQs जिसके आपके पास डायरेक्ट नोट्स हैं, तो there is no need to write those PYQs, but जो PYQs थे मुझे लगता है कि अच्छा ये मेरे नोट्स में नहीं है, तो that acted as filling the gap वाला चीज, तो then I went on to PYQ. Then you went on to the PYQs. अच्छा, then PYQs often reveal certain debate जो कि हो सकता है during the course of your foundation आपने नहीं cover किया हो, तो how do you fill those gaps, and especially historiography कैसे वहां का निकाला आपने फिर? आई थिंक लॉट ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि एक तो मेरा तो क्योंकि बैकग्राउंड है हिस्ट्री में कॉलेज से, तो स्पेशली डिबेट वाले क्वेश्चन मेरे कॉलेज में कवर्ड थे, मतलब Okay. क्योंकि कॉलेज में ऐसा ही पढ़ाया जाता है, मतलब जो डिबेटेबल टॉपिक्स हैं शायद उसका ही टॉपिक मेनली उठाए जाते हैं, तो वो था। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इग्नू का रिसोर्सेज आर वेरी गुड, उसमें हिस्टोरियोग्राफी भी है, सारी चीजों के आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपको मिल ही जाएंगे। एंड वो गैप मतलब काफी कम टॉपिक्स ऐसे होते हैं, तो आई थिंक यू कैन कवर दैट फ्रॉम इग्नू का रिसोर्स एज वेल। Okay. So you relied primarily on your college notes and IGNOU material. इग्नू मटेरियल एंड अदर बुक्स आल्सो, जैसे उपिंदर सिंह भी पढ़ी थी इनिशियली, फिर आर एस शर्मा भी, तो ये सब क्योंकि मेरे कॉलेज का बेस था उसमें, तो उधर से उठाया हुआ था। तो बिट्स एंड पीसेस कुछ कुछ मान हाँ लीजिए। हाँ हाँ हाँ। तो कई सारे सोर्सेस को आपने कंसल्ट किया था, राइट? एंड व्हाट अबाउट द स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे उपिंदर सिंह तो आपने बताया, मेडिवल के लिए भी स्टैंडर्ड बुक आपने रेफर किया था? सतीश चंद्रा थोड़ी रेफर की थी। ओके, बट वो सतीश चंद्रा हिस्टोरियोग्राफी के लिए उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट? उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। आई थिंक मिडीवियल हिस्ट्री में मेरा कम ही हिस्टोरियोग्राफी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मिडीवियल हिस्ट्री में इफ आई कुड रिकॉल, आई थिंक सिर्फ वो जो लास्ट की फ्यूडलिज्म की डिबेट है, उसमें चोला की डिबेट है, विजयनगर की डिबेट है, आई थिंक सिर्फ उन टॉपिक्स में आई हैव प्रॉपर हिस्टोरियोग्राफी। बाकी सारे टॉपिक्स में इट इज मेनली बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स, आई थिंक। बट आई फील कि वो आर्ग्यूमेंट्स इतने सॉलिड है कि वो सफाइस कर देते हैं। थोड़ा बहुत कुछ हर्बन्स मुखिया या फिर ऐसे कुछ उठा लिया तो दे आर देयर, बट मिडीवियल में उतना हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी नहीं है। बट दिस reinforces the thing ना कि arguments are more important, कहीं पे मान लीजिए यस यस यस। बट आर्ग्यूमेंट सॉलिड सॉलिड है तो इट विल कैरी। आर्ग्यूमेंट सॉलिड है तो आपका हो जाएगा। हिस्टोरियंस आपको वही है, मतलब एक दो हिस्टोरियन आपको पता ही होगा हर टॉपिक पे, इतना पढ़ ही लेते हैं उसको, इतना बार रीट्रेशन कर रहे हैं, इतना बार हिस्टोरियंस के नाम आ रहे हैं, तो ओवर एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले द आइडिया शुड बी कि वो मतलब उस क्वेश्चन का आंसर आता हो सीधा सीधा, नॉट हिस्टोरियन बट उसके आर्ग्यूमेंट्स आते हो आपको। राइट राइट। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हिस्टोरियोग्राफी का डिमांड एक्सप्लिसिट नहीं होता है, इम्प्लिसिट होता है, छुपा हुआ होता है। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया, द हड़प्पन्स हैड नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, राइट? ऑब्वियसली दिस इज अ पोजीशन टेकन बाय जॉन मार्शल एटसेट्रा। तो इसके काउंटर आर्गुमेंट्स भी होंगे, बट दोस काउंटर आर्गुमेंट्स जो हैं वो हम किसी एक हिस्टोरियन को एट्रीब्यूट करना मुश्किल होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरियंस। तो वहां पे आपका क्या अप्रोच रहता है? डू यू साइट एनी हिस्टोरियंस ओवर हियर, और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में कोई हिस्टोरियन नहीं साइड करते हैं, केवल आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे अपने आंसर को सपोर्ट करते हो आप? I think if we are not, it depends totally on our memorization और recall power कितनी है। अगर हम recall कर पा रहे हैं कोई historian का कोई एक भी argument, तो we will suffice that with the name of the historian. Otherwise, I just used to make the statement that as some historians have said, as some historian from this school of thought have said, as the historians have referred to it continuously. तो बस मतलब without naming any one historian, just refer that historians are arguing about it. Right, right. अच्छा, did you also try to anticipate any historiography related questions based on the previous year's trends? क्योंकि पिछले 3-4 साल से subaltern school modern history में काफी ट्रेंड में रहा हुआ है, तो were you especially prepared for that, या फिर आपका holistic coverage था सबके ऊपर? अब मेरा थोड़ा तो मतलब भाई एज आई वाज रेफरिंग, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऐसे डिबेट बेस्ड या हिस्टोरियोग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे नेशनलिज्म, वाज देयर नेशनलिज्म इन इंडिया, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आई वाज मोर कीन कि 3-4 हिस्टोरियंस हो मेरे पास, उसके आर्गुमेंट, स्कूल ऑफ थॉट और ये सारी चीजें हो, या फिर वही डिक्लाइन ऑफ मुगल हो गया, 18th सेंचुरी डिबेट हो गई, ऐसे वाले क्वेश्चंस में आई वाज लिटिल more cautious that I should have some historians so that I'm able to give better arguments which are substantiated by the historians. बाकी बाकी केसेस में नहीं। बाकी केसेस में नहीं। अच्छा,
कई जगहों पर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मतलब नॉर्मली तो डिबेट वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दैट पहले आपको बेसिक प्रेमिस सेट करना होगा, यू हैव टू गिव अ थीसिस स्टेटमेंट, पर उसके बाद आर्गुमेंट फ्रॉम वन साइड, देन आर्गुमेंट फ्रॉम द अदर साइड, एंड देन सिंथेसाइज करना होगा उसको। लेकिन कई जगहों पर जो क्वेश्चन का वर्डिंग होता है दैट इज क्वाइट असर्टिव, तो दैट इज एक्चुअली टेकिंग द पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, एंड वहां पे उसको एनालाइज क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे भी इज इट ऑलवेज नेसेसरी कि आंसर लिखते समय हम जो बेसिक प्रेमिस है उसको भी उतना ही एम्फेसिस दें, और समटाइम्स डज इट मेक मोर सेंस कि जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो पेटेंटली रॉन्ग है तो उसके अगेंस्ट ज्यादा आर्ग्यू करना है, क्योंकि ये बैलेंस काफी नुआंस्ड होता है। Yes, sir. I think it depends on the kind of question. If you think that मतलब ऐसे कुछ होता है जैसे आर्यन इन्वेजन थियरी है, तो मैक्स मुलर हैज गिवन दैट स्टेटमेंट दैट देयर वाज आर्यन इन्वेजन। अब एक दो हिस्टोरियंस हैं उसके सपोर्ट में जो बोलते हैं, बट वी नो मेजर नुआंस ये है कि उसके अगेंस्ट में है कि वो नहीं है, तो यू विल गिव मेजर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट मी उस स्टेटमेंट के। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेटमेंट एज वेल कि आपके पास या फिर हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग में अभी तक की जितनी एक्सकवेशन हुई है, जितना सब कुछ हुआ है, तो उसमें हमारा मेजर स्टांस किस तरफ है। इफ देयर आर स्टिल आर्गुमेंट्स तो आपको वही थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस करके एंड करना पड़ेगा। बट इफ यू थिंक हमारे उसमें अभी नहीं है ऐसा और हम मेजर काउंटर आर्गुमेंट ज्यादा दे सकते हैं, उसको सब्सटैंशिएट कर सकते हैं उसको बहुत अच्छे से, सो इट्स बेटर एंड एडवाइजेबल दैट यू गिव आर्गुमेंट्स अगेंस्ट आल्सो। राइट राइट। अच्छा, एक कंसर्न ये बड़ा रहता है कि आंसर में आर्गुमेंट्स तो लिखने ही लिखने हैं एज यू हैव जस्ट सेड, उसमें अगर हिस्टोरियोग्राफी भी ऐड करें तो आंसर वर्ड लिमिट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दैट, व्हाट इज द वर्क अराउंड व्हिच यू फाउंड? जैसे आपने बताया आप ब्रैकेट में कई बार लिख देते थे हिस्टोरियंस के नाम। हाँ, तो एनी अदर एडवाइस? ब्रैकेट में लिख दो, जैसे आर्गुमेंट लिखा एंड जस्ट राइट दैट दिस एज स्टेटेड बाय दिस हिस्टोरियन। अदरवाइज अगर while you're making notes as well, if you are finding कि किसी historian का कोई argument है, try to cut short that argument. Do not mug up that full paragraph of argument. Just मतलब उसके मैक्सिमम एक लाइन या दो लाइन इतना ही याद करना है हमको, किसी भी हिस्टोरियन का आर्गुमेंट्स किसी भी साइड पे है अगर वो, तो इफ यू लर्न अ लॉट तो तुमको लगेगा हाँ मुझे तो ये भी आता है, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, सब कुछ लिख दो। वो नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ड्यूरिंग नोट मेकिंग ओनली कि किसी भी हिस्टोरियन का आर्गुमेंट हैज टू बी रिटन इन मैक्सिमम 2 लाइन्स, तभी वो उसमें फ्रेम में आएगा, मतलब तभी आप ज्यादा पॉइंट्स लिख पाएंगे और वो वर्ड लिमिट में आ पाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब नोट्स बना रहे हो उसी टाइम पे आर्गुमेंट्स ही छोटे कर दो हिस्टोरियन के। ठीक है। अच्छा, इज इट इम्पोर्टेंट दैट यू रिमेंबर वर्बटिम एंड रिप्लिकेट इट की जो भी लिखा हुआ है हिस्टोरियन ने, या फिर उसको आसानी से पैराफ्रेज कर लो, एंड जो ऑपरेशनल टर्म है, मान लो प्रेजेंट अर्बनाइट टर्म है इससे ने यूज किया है, वो होना ज्यादा जरूरी है? इट इज द फर्स्ट, इज इट द फर्स्ट वन और सेकंड वन? इट इज कि वर्बैटम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ कुछ याद हो सकते हैं, जैसे कुछ पीवाईक्यूज है, तो पीवाईक्यू हम जब करते ही हैं काफी बार, तो वो स्टेटमेंट आई थिंक वो याद करने लायक होते हैं। कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट है, वी ए स्मिथ ने कुछ बोला है या कुछ बोला है, तो आई थिंक दैट यू कैन लर्न वर्बैटम बिकॉज आप मल्टीपल टाइम्स उसको कर रहे हो। लेकिन अदरवाइज इट्स जस्ट कि आप उनका बेसिक आइडिया याद होना चाहिए कि व्हाट दैट हिस्टोरियन इज ट्राइंग टू से। That is more than enough because there are lot of questions, lot of historians saying a lot of things. तो इतना पॉसिबल भी नहीं है आप सब कुछ याद कर पाओगे, एंड देयर इज नो पॉइंट फिर आप मतलब सब कुछ याद कर रहे हो फिर वो रेप्लिकेट नहीं हो पा रहा। तो इट्स फाइन अगर आपको बस उनका बेसिक आइडिया याद है और एक दो उनका कोई की वर्ड याद है, तो दैट इज मोर देन इनफ। एंड वन थिंग इज दैट अगर याद करने हैं तो याद कर लो जो पीवाईक्यू के स्टेटमेंट्स हैं, बिकॉज दोस क्वेश्चन यू विल डू एंड यू विल गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन, तो वो इजियर है याद करना। So those you can learn. दोज, ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि हिस्टोरियोग्राफी को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, आर ऑल थ्री फेयर गेम इन ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, या फिर डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन शुड हिस्टोरियोग्राफी बी प्लेस्ड इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस? Yes sir, I think it is very important where you are writing a historian. For example, अगर तुम कोई डिबेटेबल सा स्टेटमेंट है जो आया है, उसको तुम कंक्लूजन में लिख दोगे तो इट विल क्रिएट अ परसेप्शन अबाउट यू। मतलब तुमने उसको कंक्लूड नहीं किया, तुमने तो वो ओपन एंडेड छोड़ दिया। राइट। तो इट इज एडवाइजेबल या तो तुम उसको इंट्रोडक्शन में लिखो प्लस उसको फिर
मतलब जो भी अगर लिखा है तो अगर उसमें कुछ डिबेट है, अगर थोड़े से भी कुछ ऐसा है कि कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज है, तो एड्रेस दैट समवेयर अपने आंसर बॉडी में कहीं पे. You can write that in your introduction. You can write any statement by any historian, conclusion also. But you have to be very cautious कि उसके आगे debate ना हो. That that should be a concluding statement, not मतलब historian के नाम पे that historian has said and this has to be concluded. But आगे debate नहीं हो उसमें. एंड इंट्रोडक्शन में भी इफ यू आर रेफरिंग और उसमें कुछ ऐसे डिबेट वाले कुछ चीज है तो उसको बॉडी में एड्रेस कर दो या कंक्लूजन में ही एड्रेस कर दो उसको, मतलब इट विल एक्ट एज अ लिंक टू योर आंसर. राइट. तो मतलब इंट्रोडक्शन में तो हम जो भी एक हिस्टोरिकल पोजीशन है किसी हिस्टोरियन का, वी कैन यूज इट एज द स्टार्टिंग आर्गुमेंट कि अब ये पोजीशन ले लिया है, आगे और इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो किया जा सकता है. एंड कंक्लूजन में वी नीड टू मेक श्योर कि अगर हिस्टोरियन का नाम लिख रहे हो या कि कोई हिस्टोरियोग्राफी साइट कर रहे हो तो इट इज गिविंग रेजोल्यूशन टू द डिबेट, इट इज नॉट एक्सपेंडिंग दैट डिबेट. अच्छा, ठीक है. एंड विद रिगार्ड्स टू द मेन बॉडी, मान लो कि देर आर थ्री सेट्स ऑफ आर्गुमेंट्स, मतलब थ्री सेट्स ऑफ हिस्टोरियंस जिन्होंने सेम टॉपिक को स्टडी किया हुआ है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया, राइट? तो द कॉलोनियल स्कॉलर्स हैव कॉल्ड इट कि ये बारबारिक काउंटर रिएक्शंस अगेंस्ट प्रोग्रेस थे. मार्क्सिस्ट ने, नेशनलिस्ट ने बोला है दैट दीज वर द अर्ली स्टरिंग्स ऑफ नेशनलिज्म, लेकिन ये प्रिमिटिव थे, रिएक्शंस थे. मार्क्सिस्ट ने बोला है that these were once again reactions but against economic grievances, they had nothing to do with nationalism. And subaltern scholars ने बोला है कि ये एक ट्राइबल फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म थे, सबाल्टर्न फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म के एक्सप्रेशन थे, राइट? तो ये वाली अगर पोजीशंस हमको लेनी है तो हाउ टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस देम? शुड वी प्लेस देम हिस्टोरिकली, मतलब क्रोनोलॉजिकली कि जैसे जैसे आर्गुमेंट्स अपीयर हुए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो सबसे लेटेस्ट वाले आर्गुमेंट्स हैं वो भी हम ऊपर प्लेस करें? सर आई थिंक दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है. आई थिंक उस पे डिपेंड करेगा. एंड क्रोनोलॉजी तो आई डोंट मतलब आई एम नॉट श्योर कि उसको कैसे मतलब एड्रेस अगर मान लीजिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया दैट एक्सपैंड अपॉन द डिबेट सराउंडिंग द नेचर ऑफ 19th सेंचुरी पेजेंट रिबेलियंस या ट्राइबल रिबेलियन, तो वहां पे क्रोनोलॉजिकली हम उसको अरेंज कर सकते हैं. क्रोनोलॉजी, हाँ, तब क्रोनोलॉजी से अरेंज करेंगे बिकॉज फिर आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट देना इजियर होएगा. मतलब आप अगर सबाल्टर्न पहले लिख दोगे फिर कॉलोनियल बाद में लिखोगे, बट सबाल्टर्न तो कॉलोनियल को ही क्रिटिक कर रहा है, मतलब इन अ वे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तब उसको क्रोनोलॉजिकली प्लेस करो अगर वो डायरेक्टली डिबेट पूछ रहा है तो. एंड अगर एक और पॉइंटेड क्वेश्चन है, मतलब सेम थीम है बट इट इज सेइंग दैट द पेजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स ऑफ द 19th सेंचुरी वर मोर देन एनीथिंग एल्स इकोनॉमिक रिएक्शंस अगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, तो यानी कि वो मार्क्सिस्ट जो पोजीशन है उसको असर्ट कर रहा है. तो यहाँ पे हम क्रोनोलॉजी को ऊपर नीचे करेंगे ही ऑब्वियसली, राइट? हाँ, यहाँ पे विल एड्रेस फर्स्ट कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, दिस आइडिया हैज बीन एम्फसाइज्ड बाय द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट दे हैव एम्फसाइज्ड कि वो इकोनॉमिक रिवोल्ट थे. तो फर्स्ट विल एड्रेस, क्योंकि क्वेश्चन का आइडिया मार्क्सिस्ट पे बहुत है तो वो क्यों है और कैसे है, तो मेजर हमारा आर्गुमेंट उस पे जाएगा. देन विल राइट हाउएवर अदर स्कूल ऑफ थॉट्स हैव आल्सो सेड दिस. तो फिर और अदर स्कूल ऑफ थॉट्स को बहुत ब्रीफली मेंशन करना है इसमें, बिकॉज हमारा क्वेश्चन मेनली मार्क्सिस्ट और इकोनॉमिस्ट और उस पे है. तो मेजर हमको मार्क्सिस्ट वाले स्कूल पे और उसको एम्फसाइज करना पड़ेगा. देन कॉलोनियल का एक लाइन में, और मेनली कॉलोनियल को स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पे तो बिकॉज वो इसमें है, लेकिन सबाल्टर्न को स्पेशली एड्रेस करना पड़ेगा. फिर नेशनलिस्ट को एक लाइन में, दो लाइन में ऐसे एड्रेस करना पड़ेगा. राइट. एंड देन यहाँ पे रेजोल्यूशन हमको ऑब्वियसली ये बोलना पड़ेगा कि यस, इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस प्लेड अ मेजर रोल इन इग्नाइटिंग प्रेजेंट डिस्टर्बेंस बट दीस वर नॉट द फैक्टर्स, ओनली वंस. हाँ, तो फिर इसमें थोड़ा बैलेंस करके रहना पड़ेगा. राइट राइट राइट. अच्छा, सिंस वी आर ऑन दिस थीम, हमने सारे स्कूल्स, हमने मॉडर्न हिस्ट्री के डिस्कस कर ही लिए, तो हाउ डिड यू अप्रोच ईच ऑफ दीज थीम्स? मतलब डिड यू हैव एनी प्रीसेट अंडरस्टैंडिंग कि यार ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है तो ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ही एम्फेसाइज करेगा, ये कॉलोनियल स्कॉलर है तो ये नेशनलिज्म को अंडरमाइन ही करेगा, और अगर नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव है तो हर डेवलपमेंट में अर्ली इंडियन नेशनलिज्म की झलक देखने की कोशिश करेगा? डिड यू हैव दिस प्री कंसीव नोशन व्हाइल अप्रोचिंग दिस सब्जेक्ट, या फिर विद एवरी टॉपिक आप क्लीन स्लेट से जाते थे कि देखे क्या क्या बोला हुआ है इन लोगों ने? इनिशियली तो we'll have to go by a clean state because भाई हर स्कूल ऑफ थॉट में हिस्टोरियंस के आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत वेरी करते हैं.
तो वी हैव टू गो बाय अ क्लीन स्टेट। फिर हिस्टोरियन ने क्या बोला है उस बारे में, देन वील हैव टू रीड अपॉन दैट कि उनका क्या माइंडसेट है, देन वी कैन मे बी अलाइन विद द स्कूल ऑफ थॉट दैट दे आर रेफरिंग टू। तब लिंक स्टैब्लिश कर सकते हैं। इनिशियली वी शुड गो बाय अ क्लीन स्टेट ऑफ माइंड ओनली, बिकॉज फिर बहुत बायस बन जाते हैं, एंड वंस द बायसेस आर देयर देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू क्लीन दैट। राइट राइट। अच्छा, जस्ट फॉर द एडिफिकेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, बिकॉज कई लोगों ने पूछा भी हुआ है कि 2023 में आपका कितना स्कोर आया था इस पेपर में, याद है आपको? 2023 में I scored 252 collectively. I think I'm not able to recall एक पेपर में 120 something in one paper and 130 something in the other paper. ऐसे था। 252 स्कोर, हाँ, राइट? 252, एंड मेरा पेपर 2 में ही ज्यादा स्कोर था लास्ट टाइम। हाँ। पेपर 1 में कम था, मेनली बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ द मैपिंग। 23 की मैपिंग थोड़ी डिफिकल्ट थी, तो पेपर 1 में मेरा स्कोर 120 समथिंग था और पेपर 2 में 130 समथिंग। ऑलराइट। 252 था टोटल तो, इस एंड बार दिस टाइम टोटल इज 294, 156 एंड 138। 156 एंड 138। तो इस बार पेपर 1 में ज्यादा स्कोर किया पेपर हुआ। 1 में ज्यादा स्कोर। अच्छा, तो एक तो आपने डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बताया दैट मैपिंग वाज अ बिग गेम चेंजर फॉर यू। डिड हिस्टोरियोग्राफी और बेटर ग्रास्प ओवर हिस्टोरियोग्राफी आल्सो प्ले अ रोल इन दिस improvement? It played a better role in like having a clarity beforehand, because last time I remember very clearly that I was over stressing over historiography, and I was trying to relearn historiography। हर टॉपिक के आर्ग्यूमेंट याद करने से ज्यादा मैं हिस्टोरियोग्राफी याद करने की कोशिश कर रही थी कि हर टॉपिक में मुझे हिस्टोरियन याद हो, उन्होंने क्या बोला है वो याद हो, एंड फिर वो यूज नहीं हो पाया बिकॉज वो मतलब ऐसे मिक्स एंड मैच हो गया सब कुछ। So it Because was if more you like missing the wood for the trees, right? yes, that happened, and this time I was very clear कि historiography बाद में करेंगे, मतलब हर टॉपिक में एक दो मैक्स इज फाइन। पहले मुझे आर्ग्यूमेंट्स याद करने हैं, पहले जो उसमें सब्सटैंशिएट करने के लिए मुझे मेजर चीजें चाहिए, पॉइंटर्स चाहिए, पहले वो करेंगे। तो आई थिंक वो प्रेप में हिस्टोरियोग्राफी पे ओवर फोकस नहीं करना है हेल्प, एंड फिर इसलिए हिस्टोरियोग्राफी यूज भी बेटर हो पाई इस बार, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही याद है, तो आई विल बी एबल टू यूज दैट एटलीस्ट। अब मैंने याद करे हैं मिक्स कर करके 5-6 याद करे हैं, फिर लास्ट में याद ही नहीं आ रहा कि इसमें लिखना कौन सा है, क्या नहीं लिखना है, तो वो शायद गलत भी लिख दिया। ऐसा भी हो जाता है जब आपको 5-6 आपने याद किए, आपको याद समझ ही नहीं आ रहा कि ये इस टॉपिक में थे कि नहीं थे, तो फिर आप प्रेशर में और लिख देते हो कि अच्छा मैंने याद तो किया था, अब तो लिखना ही पड़ेगा कुछ तो। आई थिंक दैट बैकफायर्स यू, सो हिस्टोरियोग्राफी इन दैट सेंस हैज हेल्प्ड मी। राइट। क्योंकि मैंने भी देखा हुआ है, स्पेशली जो नए इनिशिएट्स होते हैं आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज अभी शुरू किया है लिखना, तो दे कम अंडर दिस इम्प्रेशन कि अगर मैं बहुत ज्यादा हिस्टोरियंस के नाम लिखूंगा तो एग्जामिनर इज गोइंग टू बी वेरी इम्प्रेस्ड। भाड़ में गया आर्गुमेंट, राइट? तो नंबर नहीं वाले हैं। नहीं, पहले आर्गुमेंट सॉलिड कर लें। हिस्टोरियंस अभी आप लिख पाएंगे क्योंकि आपके पास सिलेबस कम है, आपको एक 3-4 टॉपिक लिखने हैं, या फिर आपको मतलब हाफ सिलेबस भी कंप्लीट अगर करना है, तो स्टिल यू आर एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ हिस्टोरियंस कि इतना सा याद करना है। फिर जब आपको पता चलेगी ना कि आपको पूरा सिलेबस हिस्ट्री का याद करना है और 50 तरीके के हिस्टोरियंस हैं और हर टॉपिक में हिस्टोरियंस है, तब वो याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड देन उसको रेप्लिकेट करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उसको टोन डाउन करें थोड़ा। ओके ओके। अच्छा, आपने MIH3 रेफर किया था, बताया था, तो हाउ हेवीली डिड यू रिलाई अपॉन MIH3 फॉर हिस्टोरियोग्राफी? मतलब कितना ज्यादा, कितनी बार किया, कितनी देर तक उसके ऊपर फोकस किया? I have not relied that very heavily. I've just read that to understand कि कौन सा school of thought क्या कह सकता है और कौन सा historian क्या कह रहा है, मतलब to have that very good overall perception of historiography. That was the major idea। और उसमें से अगर कोई historian या कोई ऐसे argument दिख जाता है कि ये मेरे उसमें काम आ सकता है, किसी topic में ये काम आ सकते हैं arguments, then वो use किया। But MHI3 जो IGNOU का है, that is जस्ट एमए वाला पेपर है वो, तो दैट इज जस्ट टू हैव एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि विच स्कूल ऑफ थॉट सेज व्हाट एंड किस डायरेक्शन में वो बोल सकते हैं इस चीज के लिए। मतलब व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, व्हेन यू आर न्यू, अगर आपने कॉलेज में नहीं पढ़ा है एंड यू वांट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि हिस्टोरियोग्राफी होती क्या है, तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को स्क्रैच से हिस्ट्री पढ़नी शुरू करनी हो एज एन ऑप्शनल, तो वो MIH3 उठा करके वो उठा करके पढ़ लें उसको, तो इट विल हेल्प देम हैव एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि
But कैसे? then before that, I believe कि they must at least be familiar with the landscape and timeline of history, ना? तो awareness होनी जरूरी हाँ, है। मतलब एक बेसिक पढ़ लिया, उसके बाद जब सिर्फ हिस्टोरियोग्राफी का समझना है कि स्कूल ऑफ थॉट कैसे बोलते हैं, तब उसके लिए इम्पोर्टेंट है। राइट राइट राइट। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क यू कि लास्ट टाइम आपने ऑब्सेस किया था हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर, तो आई एम श्योर दैट मस्ट बी रिफ्लेक्टिव इन द स्टाइल ऑफ योर राइटिंग आल्सो, एंड दिस टाइम अराउंड यू मस्ट हैव हैड टू ट्रेन दैट आउट ऑफ योर राइटिंग। तो कितना लिखने का प्रैक्टिस किया, एंड वर यू वेरी कॉन्शियसली अवॉइडिंग एडिंग टू मेनी हिस्टोरियंस नेम्स, या फिर आपने केवल आर्गुमेंट्स के ऊपर फोकस किया और काम हो गया? आई वाज नॉट कॉन्शियसली अवॉइडिंग हिस्टोरियंस, मतलब वो याद करके लिख पाना ही बड़ा काम है, टू बी एबल टू लर्न हर उसके लिए। तो जितना याद आ पा रहा है उतना आई वाज राइटिंग, इट वाज नॉट कि कॉन्शियसली अवॉइड ही करना है, बिकॉज एनी डे हिस्टोरियोग्राफी इज गुड। अगर आप हिस्टोरियन से सब्सटैंशिएट कर देते हो तो वो वैल्यू एडिशन ही है आपके उसमें। बट मैं ओवरऑल आइडिया इज कि वो ओवर एम्फसाइज नहीं करना, ताकि वो बैकफायर कर जाए आपको। एंड आई हैव नॉट रिटन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब मैंने पूरे पूरे टेस्ट पेपर्स बहुत कम लिखे हैं। माय होल आइडिया वाज टू जस्ट रिमेंबर, रिकॉल, एंड उसका इफ आई हैव अपलोडेड माय नोट्स, इफ समवन हैज सीन दैट, तो हर टॉपिक में स्टार्टिंग में जैसे हड़प्पा वाला टॉपिक है तो एक पेज में उसके नोट्स बनाए हुए हैं। तो इट वाज जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग कि ये कीवर्ड्स हैं, इस सबसिस्टेंस पैटर्न के ये कीवर्ड्स हैं। अगर जैसे डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन है तो वो 4 हिस्टोरियन और 4 जो थ्योरी है मेन वो है। मतलब माय होल आइडिया दिस टाइम वाज एक्टिव रिकॉलिंग ईच एंड एवरी टॉपिक दैट आई कुड। अच्छा, देन वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या रोल रहता है हिस्टोरियोग्राफी का? सर, वर्ल्ड हिस्ट्री में how much of a role does historiography play? Because there are a few topics जहाँ पे historiography आता है, for example revolution, civil war, ये bolshevik revolution वहाँ पे आता है, but rest of world history I'm sure there is a lot of historiography, but we don't get to encounter it much. तो हमारे क्या बोलते हैं ऑर्बिट से बाहर है वो। तो वर यू डिड यू मेक एनी चेंजेस, या फिर यही पैटर्न रखा आपने कि वर्ल्ड हिस्ट्री में लाइट रहेगा हिस्टोरियोग्राफी थोड़ा? आई थिंक सर वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा कम ही है, बिकॉज एक तो मिल नहीं पाते हैं हिस्टोरियंस, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आई हैड लेसर नंबर ऑफ हिस्टोरियंस। यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाते वर्ल्ड हिस्ट्री में उतना यस हिस्टोरिक? यस यस। राइट राइट। अच्छा, देन ऑल्दो यू ऑलरेडी एड्रेस्ड इट, मतलब लेकिन फिर भी इफ यू वर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन एज अ फ्रेशर राइट नाउ, तो व्हाट वुड यू हैव डन डिफरेंटली in order to be better prepared for historiography? If you are just starting out, I think first focus on writing the major arguments, basis बना लो। हिस्टोरियोग्राफी को बाद में ही ऐड करना इज अ वेरी, आई थिंक, अ बेटर थिंग टू डू। थोड़ा, या फिर साथ साथ में करो, मतलब वही ओवर एम्फसाइज नहीं करना है उस बात को। मेजर उसमें टॉपिक में जो भी हु इज आल्सो स्टार्टिंग आउट, जस्ट राइट द मेजर आर्ग्यूमेंट्स एंड उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्टोरियंस इंक्लूड करते रहो। राइट, चलिए ठीक है then. All right then, Surbhi, thank you so much थैंक यू, for your time. I थैंक hope यू। you're able to do this once again at a later date at your convenience. यस But we're यस, very thankful कि आपने अपना time volunteer किया इतना gracefully. And thank you. We learned a lot, and I'm sure our students did too. So thank you for your time. We'll be seeing you soon. थैंक यू।